बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वीडियो सेशन किंटब पब्लिशर्स। प्यारे बच्चों, इनिशियली आपके पास इन 3 किताबों का होना जरूरी है। नंबर 1 जनरल साइंस प्राइमरी स्टैंडर्ड CSS सीरीज किंटब पब्लिशर्स, नंबर 2 समर पैक एंड नंबर 3 रिसोर्स पैक। डियर स्टूडेंट्स, जनरल साइंस में बुक के अंदर आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स हैं और इन कॉन्सेप्ट्स की एक्टिविटीज आपको समर पैक में मिलेंगी। इन दिनों छुट्टियां हैं, यू डोंट हैव योर क्लासेस, सो यू विल बी एबल टू recognize the things we have studied in book. You will see these activities in your summer pack. अगर आपको कोई solution में मसला हो exercise solving में, तो summer pack can help you in that regard as well. So try to get these 3 books, then we can understand the concept easily. The name of the chapter is microorganisms. Oh, what is meant by microorganisms? It is obvious, it is evident from its name, micro. Micro means बहुत छोटे, and organism means living things. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें माइक्रोस्कोप, is it is clear from the name of this device also, microscope means कि एक ऐसी मशीन जो कि बहुत छोटी छोटी चीजों को भी हमारे लिए विजिबल बना दे, जो हमें नजर आए। So just have a glance on the text and then you will be able to understand the forthcoming concepts. The word micro is originated from Greek language, which means small. Microorganisms. The microbes are living forms whose size is so small that they are usually not visible to naked human eye. They can only be seen from a special equipment known as microscope. The study of these microbes is called microbiology. हाँ प्यारे बच्चों, इन छोटी छोटी लिविंग थिंग्स को सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है और इनके पढ़ने को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ये आप लोग आगे भी डिटेल से पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों। यहां 3 अल्फाज हैं, माइक्रो और बायोलॉजी। बायोलॉजी वो साइंस की वो ब्रांच है कि जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, और माइक्रो कौन से लिविंग थिंग? बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे लिविंग थिंग्स जो हैं उनके बारे में हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन द SLOs of this chapter, ताकि हमें ये पता चले कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं। So my dear students, the first one SLO is the student must be able to define microorganisms. आप लोग इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। Number 2, to identify the main groups of microorganisms and give example for each. And number 3, describe the advantages and disadvantages of microorganisms in daily life. And number 4, to define infection. Easy. And number 5, to identify ways by which microorganisms can enter into the human body. And number 6, suggest ways how to avoid infections. So these are very much important. So my dear student, just have a look and we go forward in the chapter. And microorganisms क्या है और इसको कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। But before that, just have once again a look on the text. Microorganisms are present almost everywhere in the earth. Microorganisms are very diverse and include all bacteria, viruses, and certain microscopic animals. Despite their minute size, they have a tremendous importance in the maintenance of life on earth.
Some of them are very helpful and some of them are harmful and cause different diseases. And let's have an interesting information here. Do you know our mouth is inhabited by 500 to 1000 different types of bacteria, 70 to 80 different types of fungi, and few viruses and parasites. Wow, this kind of these microorganisms are there and they play their role in our mouth. So आते हैं my dear student towards the main classification of microorganisms or microbes. तो microorganisms में सबसे पहले और सबसे खतरनाक that is called as virus. उससे थोड़ा साइज में बड़ा और थोड़ा कम खतरनाक that is called as bacteria. और उससे साइज में बड़ा जो है that is called as फंजाई. यानी फंजाई इतने कभी कभार इतने भी बड़े हो जाते हैं, कुछ कुछ फंजाई हमें नेकेड आई से भी नजर आने लगते हैं और वो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिटेल में इस वक्त सिर्फ वायरस को पढ़ेंगे और उसके बाद बैक्टीरिया को और फंजाई को हम अगली क्लासेस में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे. वायरस इज बेसिकली और वेरी माइन्यूट एंड यहां पे एक ये भी मसला है कि आया वायरस जो है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक ये इंसान के बॉडी से बाहर हो तो ये बिल्कुल डेड रहता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. यानी ये ना रिप्रोड्यूस कर सकता है ना कुछ और करता है, लेकिन जैसे ही ये ह्यूमन बॉडी पे या एनिमल की बॉडी पे अटैक करता है लिविंग थिंग्स पे, तो वहां पे ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है तेजी से और अपनी शक्ल बदलता रहता है. तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी डेंजरस एज वेल. माय डियर स्टूडेंट्स, वायरस के मुख्तलिफ शेप्स हैं एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग इनके शेप्स को भी डिटेल से पढ़ लें. As you know that viruses cannot feed, respire, excrete, grow and even reproduce unless they are inside living cell. When they live outside the living body, they are found in the form of crystals. जिस तरह हमने डिस्कस किया, आते हैं इनके डिफरेंट शेप्स की तरफ और इसके शेप्स में है the first one is that is called as round shape ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस. बीमारी का भी नाम दिया हुआ है, कहां पे अटैक करता है. एंड द नेक्स्ट वन इज रॉड शेप्ड टोबैको मोज़ेक वायरस. यानी मोस्टली ये टोबैको पे अटैक करता है. एंड द नेक्स्ट वन इज टेडपोल शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस. तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि स्पेसिफाइड शक्ल आपको नजर आ रही है. ऊपर इसका 6 कोनों वाला सर है और दरमियान में ये इसकी बॉडी है और नीचे लेग्स की तरह बिल्कुल जस्ट लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि नॉर्मल लाइफ में हमें नजर आते हैं. एंड अनदर वन इज अ पॉलीहेड्रल. पॉली मीन्स मेनी, हेड्रल मीन्स कोने वाला, जिसके काफी सारे कोने हो. polyhedral shape of adenovirus. So these are the 4 main types of virus. और when we talk about the size, as I stated earlier, कि size में बहुत छोटे होते हैं. The average virion is about 100 of the size of average bacterium. देख ले, बैक्टीरिया के साइज को अगर हम दिस इज बैक्टीरिया और इसको 1 और 100 ले लें, यानी इसके 100 टुकड़े कर दें और 100 टुकड़े में 1 का जो साइज होगा, दिस इज द साइज ऑफ वायरस. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके शेप्स के बाद हम इसकी इफेक्ट्स की तरफ बाद में जाएंगे. यहां तक आप लोग सिर्फ ये जाने, आप लोग आज के सिलो आपका ये कवर हो जाएगा कि माइक्रोब्स क्या है, लिविंग थिंग्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं. और उसमें आपने देखा वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है और हमने फिर वायरस को थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया. सो my dear students, you have to look into the
समर पैक के इससे रिलेटेड जो आपको एक टेबल दिया हुआ है, दैट इज रिगार्डिंग वायरस एंड यू हैव टू perform that activity. So best of luck my dear student. See you in the next class. Allah Hafiz.